وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے مرکزی دروازے پر وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور اہم امور پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور بدلتے عالمی تقاضوں کے مطابق باہمی تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کے عوام سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے بے تابی سے منتظر ہیں۔ محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کی۔ وفد کے ارکان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی اور عالم اسلام کی سربلندی اور اتحاد و یکجہتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مرحوم ارشد شریف کا جسد خاکی اسلام آباد پہنچا دیا گیا۔ نماز جنازہ کل اسلام آباد میں ادا کی جائے گی۔ سینئر صحافی ارشد شریف کے کینیا میں قتل کا معاملہ، حقائق جاننے کے لیے اعلیٰ سطح پر مشتمل 3 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل۔ تحقیقاتی ٹیم FIA اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے اعلیٰ افسران پر مشتمل تحقیقاتی ٹیم کینیا روانہ ہوگی۔ ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کرے گی۔ حتمی رپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ ارشد شریف کی موت سے متعلق قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اس واقعے پر ہم سب کو دکھ ہے۔ معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ واقعے کو جواز بنا کر الزام تراشی سے گریز کیا جائے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار۔ چین کا FATF کا پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا خیر مقدم۔ مشکلات کے باوجود پاکستان نے گزشتہ 5 سال کے دوران منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے نظام کو مسلسل بہتر بنایا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ۔ چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی ویباک کے ذریعے گوادر فری زون سے پہلی کھیپ کی کامیاب ترسیل۔ یہ تاریخی ترقی گوادر فری زون میں سرمایہ کاری کو ان کے وقت، پیسے اور توانائی کی بچت کر کے سہولت فراہم کرے گی۔ یہ ہے تمہارے نام، اس مٹی کے لیے بہتے لہو کے نام، میرے دل میں بسے جان سے پیارے پاکستان کے نام۔ اے راہ حق کی شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ مکیال کا ایک نائک ان پہاڑوں کے آخری گولی نہیں، آخری سانس تک لڑنے والے آزاد کشمیر رینجمنٹ کے نائک سیف علی جنجوعہ کا 74واں یوم شہادت۔ سیف علی نے 1948 کی پاکستان بھارت جنگ میں پیر کلیوگ پوسٹ کا بہادری سے دفاع کرتے ہوئے 26 اکتوبر 1948 کو جام شہادت نوش کیا۔ حکومت آزاد کشمیر کی ڈیفنس کونسل نے ہلال کشمیر کے اعزاز سے نوازا۔ جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے 75 سال مکمل ہونے پر کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم اہل کشمیر کل یوم سیاہ منائیں گے۔ یوم سیاہ پر کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال کی اپیل۔ بارشوں اور سیلاب کے بعد نقصانات کا سروے اور متاثرین کی امداد اور بحالی کا عمل جاری ہے۔ NFRCC کے مطابق پاک فوج، بحریہ، فضائیہ، سول انتظامیہ اور رفاہی ادارے متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات اور رہائشی اسباب کی فراہمی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ کرونا وائرس نے ایک اور شخص کی جان لے لی۔ 43 افراد کی حالت تشویشناک۔ گزشتہ روز 7512 ٹیسٹ کیے گئے، 52 پازیٹیو رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.69 رہی۔ قومی ادارہ صحت۔ نو منتخب برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے باضابطہ طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ 42 سالہ رشی سوناک برطانیہ کی 100 سالہ تاریخ میں سب سے کم عمر وزیر اعظم
وہ برطانیہ کے پہلے غیر سفید فام رہنما اور وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے والے پہلے ہندو ہیں۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ مغربی کنارے میں صہیونی فورسز کی فائرنگ سے 6 نوجوان شہید، 19 زخمی۔ اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے جس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ ترجمان فلسطینی صدر۔ بنگلہ دیش میں سمندری طوفان سترنگ، 24 افراد ہلاک، متعدد مکانات تباہ، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، مواصلاتی رابطے منقطع، 10 لاکھ سے زائد افراد محفوظ مقامات پر پناہ لینے پر مجبور، بیشتر شہروں میں تیز بارش، دارالحکومت ڈھاکہ اور دوسرے شہروں میں سیلاب۔ طوفان سے بھارت کی ریاست مغربی بنگال بھی متاثر ہوئی۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ سپر 12 مرحلے میں آج میلبرن میں 2 میچز۔ پہلے میچ میں آئرلینڈ کا انگلینڈ کو جیت کے لیے 158 رنز کا ہدف، انگلش ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ اور افغانستان کی ٹیمیں دن 1 بجے مد مقابل ہوں گی۔ ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ T20 ورلڈ کپ قومی ٹیم اپنا دوسرا میچ کل زمبابوے کے خلاف کھیلے گی۔ کھلاڑیوں کا پرتھ میں آپشنل ٹریننگ سیشن جاری، تربیتی سیشن سے قبل کرکٹرز کا مقامی بچوں کے ساتھ فن سیشن، بات چیت کی، کرکٹ کھیلی اور مفید مشورے دیے۔ آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ میں ATP 500 ٹورنامنٹ، ویانا اوپن میں آسٹریا کے ڈومینک تھیم اور کینیڈا کے ڈینس شیپوالوو پری کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے۔ سوئٹزرلینڈ کے سٹان وارینکا اور برطانیہ کے اینڈی مرے نے سوئس انڈور بیسل ٹینس ٹورنامنٹ کے راؤنڈ آف 16 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ 6-4, 6-4. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں سلمہ کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ریاض میں ملاقات ہوئی۔ ریاض کے شاہی دیوان پہنچنے پر سعودی ولی عہد نے مرکزی دروازے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ سعودی ولی عہد نے انتہائی گرمجوشی سے شہباز شریف سے مصافحہ اور معانقہ کیا، جو دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان خوشگوار تعلقات کا عکاس ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اپنے وفد کا تعارف کرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی سعودی ولی عہد کو اپنے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ارکان کا تعارف کرایا۔ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں حالیہ تباہ کن سیلاب کے دوران امداد فراہم کرنے اور متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان کی فراہمی کے لیے ریاض اور اسلام آباد کے درمیان خصوصی پروازوں پر سعودی عرب کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی ولی عہد نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات دونوں ممالک، خطے اور دنیا کے لیے اہم ہیں۔ ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی ولی عہد سے اہم ملاقات میں بدلتے ہوئے عالمی تقاضوں کے مطابق دو طرفہ برادرانہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے پر اتفاق ہوا۔ محمد شہباز شریف نے شہزادہ محمد بن سلمان سے کہا کہ پاکستان کے عوام آپ کے دورہ پاکستان کے بے تابی سے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ وفد کے ارکان بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے اسد یار خان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف دورہ سعودی عرب کے دوران ریاض میں اپنی مصروفیات کے بعد مکہ مکرمہ گئے، جہاں انہوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور وفد کے دیگر ارکان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم اور ان کے وفد کے ارکان نے نوافل ادا کیے اور ملک کی ترقی و خوشحالی، سلامتی اور عالم اسلام کے اتحاد و یکجہتی اور سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اس سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف عمرہ کی ادائیگی کے لیے ریاض سے جدہ کے لیے روانہ ہوئے تو ہوائی اڈے پر اعلیٰ حکام نے انہیں
رخصت کیا۔ ریاض میں قیام کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سعودی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سمٹ سے بھی خطاب کیا۔ ریاض سے جدہ پہنچنے پر جدہ کے گورنر شہزادہ سعود بن عبداللہ بن جوالی نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے وفد کے ارکان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ صحافی ارشد شریف کا جسد خاکی اسلام آباد پہنچا دیا گیا۔ ان کا جسد خاکی وصول کرنے کے لیے اہل خانہ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ارشد شریف کی نماز جنازہ کل اسلام آباد میں ادا کی جائے گی۔ صحافی اور ٹی وی اینکر ارشد شریف کا جسد خاکی کینیا سے براستہ دوحہ پاکستان روانہ کیا گیا تھا۔ ارشد شریف کے جسد خاکی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کی موت گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سینئر صحافی ارشد شریف کے کینیا میں قتل سے متعلق حقائق جاننے کے لیے اعلیٰ سطح 3 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ ایف آئی اے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے اعلیٰ افسران پر مشتمل ٹیم فوری طور پر کینیا روانہ ہوگی اور ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کر کے حتمی رپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کرے گی۔ اپنے بیان میں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ تحقیقاتی ٹیم ارشد شریف کیس میں پاکستان کے ایک نجی چینل سے منسلک شخصیت کے کینیا میں سونے کے سمگلنگ کے کاروبار سے متعلق قائم کمپنی کے کردار کا جائزہ لے گی۔ تحقیقاتی ٹیم ایک سیاسی شخصیت کے اعتراف کے بعد ارشد شریف کو پاکستان سے دبئی اور پھر کینیا جانے پر مجبور کرنے والے عوامل کا بھی جائزہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم کینیا پولیس اور دیگر ذرائع سے حاصل شدہ معلومات اور شواہد کی روشنی میں اپنی ایک آزادانہ رپورٹ مرتب کر کے وزارت داخلہ کو پیش کرے گی۔ مسلح افواج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ ارشد شریف کی موت سے متعلق قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اس واقعے پر ہم سب کو دکھ ہے، معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ واقعے کو جواز بنا کر الزام تراشی سے گریز کیا جائے۔ ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ کو کہ ہائیسٹ لیول کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ جو بھی لوگ یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں those speculations can be put to rest۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ بدقسمتی سے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں اور سانے کو جواز بنا کر من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو لوگ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور جن بغیر کسی ایویڈنس کے من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ تحقیقات صرف انہی سرکمسٹانسز کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہوا، بلکہ ان سرکمسٹانسز کی بھی ہونی چاہیے کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا، کس نے ان کو مجبور کیا یہاں سے جانے پہ، وہ کیسے گئے، اس دوران کہاں پہ رہے اور what were the circumstances leading to this incident۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور ان کی اہلیہ مقتول صحافی ارشد شریف کے گھر گئے اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ صحافت کے میدان میں ارشد شریف کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ مرحوم تحقیق اور حقائق کے ساتھ بلا خوف اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ صدر مملکت نے مرحوم کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صحافی ارشد شریف کے کینیا میں قتل کی تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ نے 3 رکنی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ ٹیم کے ارکان فوری طور پر کینیا روانہ ہوں گے جہاں وہ کینیا کے پولیس اور حکام کے ساتھ مل کر واقعے کی تحقیقات کریں گے۔ ٹیم میں ایف آئی اے، آئی بی اور آئی ایس آئی کے نمائندے شامل ہیں۔ وزارت خارجہ اور نیروبی میں پاکستانی ہائی کمیشن کمیٹی ارکان کو ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے۔ ٹیم واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ الیکشن کمیشن میں غیر پارلیمانی زبان کے استعمال پر عمران خان کو شو کاز نوٹس پر سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل انور مقصود کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے اگلے جمعرات کی تاریخ دینے کی استدعا کی جس پر کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن سے نااہلی کا معاملہ۔ عمران خان نے نااہلی چیلنج کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے عائد اعتراضات دور کر دیے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی مصدقہ نقل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی۔ عمران خان کے نمائندے نے اٹارنی کے ذریعے بایو میٹرک کی بھی تصدیق کرا دی۔ عمران خان نے بطور ایم این اے عہدے سے ہٹانے کا آرڈر بھی چیلنج کر دیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ این اے 95 سے بطور رکن قومی اسمبلی ہٹانے کا آرڈر کالعدم قرار دے۔ فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ مقدمے میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے 2 شریک ملزمان کی بینکنگ کورٹ نے 31 اکتوبر تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔
अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 1-1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। बैंकिंग कोड की फाजिल जज रक्षंदा शाहीन की रुखसत के बायस ड्यूटी जज राजा आसिफ महमूद ने मुकदमे की समाअत की। अदालत ने FIA को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिया। हाई कोर्ट के अहकामात के बाद फॉरेन एक्सचेंज एक्ट का केस बैंकिंग कोर्ट मुंतकिल हो गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पहले ही इस मुकदमे में 31 अक्टूबर तक अबूरी जमानत ले चुके हैं। वीवॉक के जरिए गवादर फ्री जोन से पहली खेप की कामयाब तरसील हो गई। चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि ये तारीखी तरक्की गवादर फ्री जोन में सरमायाकारों को उनके वक्त, पैसे और तवानाई की बचत करके सहूलत फराहम करेगी। और यहाँ आपको बताएंगे कि हालिया मौसम बरसात के दौरान तूफानी बारिशों और सैलाब के बाद नुकसानात का सर्वे और मुतासरीन की इमदाद और बहाली का अमल जारी है। NFRCC के मुताबिक मजीद 9,75,333 घरों का सर्वे किया गया और नुकसानात के आदाद शुमार जमा किए गए। मुतासरा इलाकों में पाक फौज, सिविल इंतजामिया और रफाही इदारों की जानिब से खुराक, अद्वियात और रिहायशी असबाब की फराहमी का काम बदस्तूर जारी है। ताहम सूरत हाल की बेहतरी के बायस हेलीकॉप्टर्स के जरिए सामान की तरसील या लोगों के इनखला का ऑपरेशन अब रोक दिया गया है। तबाहकुन सैलाब के बाद मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए 4,659 अफराद को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था। पाक बहरिया ने भी सैलाब में डूबे इलाकों में कश्तियों के जरिए लोगों के इनखला और उन्हें खुराक, अद्वियात और जरूरी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी रखा। पाक फजाइया ने 54 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए और मुतासरीन में 4,800 टन राशन, 3,27,000 लीटर साफ पानी और बड़ी तादाद में खैमे, कंबल और मलबूसात तकसीम किए। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन की तरफ से फराहम की गई एम्बुलेंसेज बलोचिस्तान को दे दी गई हैं। वफाकी वज़ीर सेफ्रॉन सेनेटर तलहा महमूद ने चाबियाँ चीफ सेक्रेटरी अब्दुल अजीज़ अकीली के हवाले की। वफाकी वज़ीर तलहा महमूद ने कार खैर पर इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि एम्बुलेंसेज आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल होंगी। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन बलोचिस्तान के सरबराह ऑरन प्रोलगर और सेक्रेटरी सेहत हाफिज़ ताहिर ने एम्बुलेंसेज की हवालगी की याददाश्त पर दस्तखत किए। स्विट्ज़रलैंड में वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद से DG यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन मसाही कमेटियों की मुलाकात की। डायरेक्टर जनरल UPU ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली हालिया तबाहकारियों पर तशवीश का इजहार किया और सैलाब से मुतासरा इलाकों में डाक खानों के बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए पाकिस्तान पोस्ट की बड़े पैमाने पर मदद करने का ऐलान किया। मौलाना असद महमूद ने कहा कि पाकिस्तान पोस्ट दुनिया भर में कम कीमत और बेहतरीन अंदाज में खदमात सर अंजाम दे रहा है। UPU के मुताबिक पाकिस्तान पोस्ट में जद्दत लाएंगे। वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद ने UPU प्रोडक्ट IFS को अपनाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मौलाना असद महमूद ने वफ्द के हमरा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की खुसूसी दावत पर UPU हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम अहले कश्मीर कल यौम स्याह मनाएंगे। यौम स्याह पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से मकबूज आबादी में मुकम्मल हड़ताल की अपील की गई है। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज ने तकसीम बर्र सगीर के मंसूबे की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए मुस्लिम अक्सरियती रियासत पर हमला करके कब्जा किया था। आखिरी गोली नहीं बल्कि आखिरी सांस तक लड़ने वाले आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के मर्द मुजाहिद नायक सैफ अली जंजुआ का 74वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। नायक सैफ अली जंजुआ 23 अप्रैल 1922 को खंडहार तहसील नक्याल आज़ाद जम्मू कश्मीर में पैदा हुए। उन्होंने 1940 में फौज में शमूलियत इख्तियार की और 18 मार्च 1941 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी की रॉयल कोर ऑफ इंजीनियर्स में बतौर सिपाही शामिल हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद नायक सैफ अली सरदार फतेह मोहम्मद करेलवी की हैदरी फोर्स में शामिल हो गए। उन्होंने 1948 की पाक भारत जंग के दौरान पीर कलियोह पोस्ट पर मुतअद्दिद भारतीय हमलों का बहादुरी से दिफा करते हुए 26 अक्टूबर 1948 को जाम शहादत नोश किया। दुश्मन इस पोस्ट पर कब्जा करने में नाकाम रहा और भारी जानी नुकसान उठाकर पसपा हुआ। नायक सैफ अली जंजुआ ने कश्मीर से डोगरा राज के खात्मे में भी भरपूर किरदार अदा किया। 14 मार्च 1949 हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की डिफेंस काउंसिल ने बाद अज़ शहादत उन्हें हिलाल कश्मीर का एजाज़ दिए जाने का ऐलान किया। ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा अस्करी एजाज़ है। बाद अज़ां हुकूमत पाकिस्तान ने 1995 में हिलाल कश्मीर को निशान हैदर के मसावी करार दिया।
इंटरनेशनल फ्रंट से खबर, चीन ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के फैसले का खैर मकदम किया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने FATF के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के फैसले का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किलात के बावजूद गुज़श्ता 5 साल के दौरान इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी की माली मावनत के निज़ाम को मुसलसल बेहतर बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला जाना इस बात का सबूत है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम किया जा रहा है। फ़लस्तीन में निहत्ते शहरियों पर इसराइल के मज़ालिम जारी हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में सेहूनी फोर्सेज ने तलाशी और छापों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 6 फ़लस्तीनियों को शहीद और 19 को ज़ख्मी कर दिया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा है कि मकबूजा इलाकों में नाबलोस और रामल्लाह के करीब नबी साले नामी कस्बे में इसराइली फ़ौजियों ने निहत्ते शहरियों पर मज़ालिम ढाए। फ़लस्तीनी सदर के तर्जुमान ने इसराइल के अस्करी ऑपरेशन को जंगी जुर्म करार देते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयों के ख़तरनाक और तबाहकुन नताइज सामने आ सकते हैं। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कंजरवेटिव पार्टी के नए लीडर ऋषि सुनाक को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रही हैं नमरा सुहेल। 42 साला ऋषि सुनाक बरतानिया की 100 साला तारीख में सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म, बरतानिया के पहले गैर सफ़ेद फाम रहनुमा और वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने वाले पहले हिंदू हैं। अपने इंतखाब के बाद बर्मिंघम पैलेस में शाह चार्ल्स होम से मुलाकात के बाद ऋषि सुनाक 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे तो मीडिया और सियासतदानों की बड़ी तादाद बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मौजूद थी। इससे पहले सुबकदोश होने वाली बरतानवी वज़ीर आज़म लिज ट्रस ने शाह चार्ल्स होम से मुलाकात की और बाज़ाब्ता तौर पर अपना इस्तीफा पेश किया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कौम से खिताब करते हुए ऋषि सुनाक ने कहा कि वो बरतानवी अवाम को मुत्तहिद करेंगे, मुल्क को आगे ले जाने के लिए दावे नहीं अमली काम पर तवज्जो देंगे। I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. So I stand here before you, ready to lead our country into the future. आलमी मीडिया और माहिरीन के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म की कुर्सी ऋषि सुनाक के लिए फूलों की सेज नहीं होगी। इससे पहले 2 माह से कम अरसे के लिए बरतानिया की वज़ीर आज़म रहने वाली लिज ट्रस के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज मईशत था, जिसको ठीक करना और बरतानवी आवाम की ख्वाहिशात पर पूरा उतरना ऋषि सुनाक का सबसे बड़ा हदफ होगा। सुबकदोश होने वाली वज़ीर आज़म लिज ट्रस को खिराज तहसीन पेश करते हुए ऋषि सुनाक का कहना था कि उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत सिर्फ 7 हफ्ते थी, ताहम मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहती थीं। बतौर वज़ीर आज़म उनसे जो भी गलतियां हुई वो इन्हें ठीक करेंगे। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ आपको आगाह करेंगे कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि अगर रूस की तरफ से ईरानी ड्रोन्स का यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल साबित हुआ तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान ने कहा है कि हमने माजी में रूस को असलहा बेचा है, लेकिन यूक्रेनी जंग के लिए इसे फ़रोख्त करने से मुतालिक बातें बेबुनियाद हैं। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने रूस को यूक्रेन की जंग के लिए ना तो असलहा दिया, ना ही देने का इरादा है। बांग्लादेश में समंदरी तूफान सतरंग की वजह से 24 अफराद हलाक हो गए हैं। समंदरी तूफान की वजह से मुतादिद मकानात तबाह हो गए, दरख्त उखड़ गए और बिजली, सड़क और मवासलाती राबतों में खलल पड़ा। जनूबी बांग्लादेश में 10 लाख से ज़ायद अफराद को अपने मकानात छोड़कर महफूज मकामात पर पनाह लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तूफान खलीज बंगाल से 88 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ बांग्लादेश में दाखिल हुआ और तकरीबन 3 मीटर तक बुलंद समंदरी लहरों ने नशीबी साहली इलाकों को डबो दिया। समंदरी तूफान की वजह से बेशतर शहरों में तेज़ बारिश हो रही है। दारुल हुकूमत ढाका और दूसरे शहरों में सैलाब आ गया है। तूफान की वजह से भारत की रियासत मगरबी बंगाल भी मुतासिर हुई है, जहाँ हज़ारों अफराद को इमदादी मराकज़ में मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान से ग्लोबल डिग्निटी तंजीम के सदर जुआना मंगरेली ने अपने वफ्द के हमरा लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए विमेन यूनिवर्सिटीज़ और विमेन चैम्बर्स का किरदार अहम है और इसीलिए ये चैम्बर्स बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन कारोबार समेत दीगर शोबों में अपना लोहा मनवा रही हैं। गवर्नर ने कहा कि बतौर चांसलर यूनिवर्सिटियों में 7 शोबों में कंसोशियम बनाए गए हैं, जिनमें से एक विमेन एम्पावरमेंट है।
उन्होंने कहा कि कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो पाकिस्तानी अवाम में इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौक़िफ़ और इंसान दोस्ती की वजह से बहुत मकबूल हैं। इस मौके पर जिवाना मंगरेली ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरामन मुल्क है। उन्होंने कहा कि मीडिया और इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान का जो तासुर मिला था, यहाँ आकर उसके बरक्स पाया। कैनेडियन वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को टूरिज्म के जरिए फ़रोग़ दिया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत फैसलाबाद डिवीज़न के मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें मेंबरान की जानिब से वज़ीर आला के इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। इजलास में मेंबरान ने फैसलाबाद डिवीज़न में नई तहसीलों के क़याम की तजावीज़ दी और वज़ीर आला की जानिब से ज़ेर तकमील मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए फ़ंड्स की फराहमी की हिदायत जारी की। मंडी बहाउद्दीन में इंसदाद पोलियो के हवाले से सेमिनार और आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खान ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी सेहतमंद पाकिस्तान की ज़मानत है। कौम के नौनिहालों को पोलियो मर्ज से महफूज रखने और उन्हें मुस्तकबिल में मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे ज़रूर पिलाए जाएं। नुमाइंदा PTV न्यूज़ राजा मोहम्मद अयूब के मुताबिक CO हेल्थ DH और दीगर मुकर्ररीन ने भी हाज़रीन को इंसदाद पोलियो के हवाले से आगाही दी। सेमिनार के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और मुलाजिमीन में तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। तकरीब के इख्तिताम पर इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से आगाही वॉक भी मुनक़िद की गई। जनूबी पंजाब में डेंगू केसेस की तादाद 1092 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 28 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। सबसे ज़्यादा मुल्तान में मजीद 19 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए। हस्पतालों में मजमूई तौर पर डेंगू के शिकार 54 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। बात करेंगे कोरोना वायरस की। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस के 52 नए केसेस रिपोर्ट हुए और एक शख्स जाँ बहक हुआ। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 7512 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से मरीजों की शरह 0.69% रिकॉर्ड की गई। कोरोना से मुतासरा 43 अफराद की हालत तशवीशनाक है। और अभी खबर यह है कि बलूचिस्तान में मुअत्तल होने वाले बल्दियाती इंतखाब 11 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हब और लसबेला में उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल 1 से 4 नवंबर तक होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशान 16 नवंबर को अलॉट किए जाएंगे। म्यूनसिपल कमेटी हरमज़ई पशीन के इंतखाब के लिए उम्मीदवार 2 से 4 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। 18 नवंबर को हतमी फहरिस्त और निशानात जारी होंगे। दरबार आलिया ईदगाह शरीफ के सज्जादा नशीं पीर हसन नकीबुर्रहमान ने लंदन में महफिल मिलाद की रूहानी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि दीन इस्लाम हमें मोहब्बत, अमन व सलामती का दर्स देता है। इस पुरफितन दौर में ज़िक्र अल्लाह और ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुलूब को राहत और सुकून मिलेगा। आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में ईरानी आर्टिस्टों के कुरानी फनपारों की नुमाइश हुई। कुरानी आयात और सूरतों को इंतहाई खूबसूरत और खुशखत अंदाज में तहरीर किया गया है। देखते हैं यासिर हुसैन की यह रिपोर्ट। जरा इन कुरानी आयात पर नजर डालिए। खत नस्तलीक में किस कदर दिलकश और खुश नवीसी से लिखी गई हैं। इन आयात को ईरानी खत नस्तलीक में लिखा गया है। इनकी खूबसूरती और दिलकशी खत्तात की इन आयात से दिलचस्पी का सबूत है। मेहदी ईरानी तज़हीब और रजा मदनी खुश नवीसी के माहिर और उस्ताद हैं और उनका काम देखकर ये एहसास होता है कि किस कदर महारत और दिल से काम किया गया है। आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम ये इस्लामी खत्ताती की नुमाइश थी, जिसमें DG खाने फरहंग और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। उन्होंने कहा, इस्लामी खत्ताती ईरान और पाकिस्तान का मुश्तरका इस्लामी फन और सकाफत का आईनादार है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। बात करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की, जहां आज भी फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है, जिसकी वजह से लाहौर शहर आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास भट्टी से। वकास, आगाह कीजिएगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ पंजाब की जानिब से आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक टाउन हॉल और माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 119 रिकॉर्ड किया गया है। टाउनशिप में एयर क्वालिटी इंडेक्स 90 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस्लामपुरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 227 रिकॉर्ड किया गया है। एयर इंडेक्स के मुताबिक लाहौर आलूदा तरीन शहरों में शुमार किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, जिनमें गला ख़राब, सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन और नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियां शामिल हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए रुमाल का इस्तेमाल करें और मास्क भी यूज़ करें, और साथ साथ दफातर और घरों में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें ताकि स्मोक से बचा जा सके। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ और फैक्ट्री मालिकान और मिल्स पर कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और उन पर भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। दई इलाकों में भी फसलें जलाने पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और शहरियों से भी इल्तजा है कि वो कचरा ना जलाएं, क्योंकि इससे भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। शुक्रिया वकास, आपने आगाह किया। माहौलियाती तब्दीलियों के तबाहकुन नताइज सामने आ रहे हैं। इन तब्दीलियों के असरात यूरोप में भी देखे जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ममालिक को 2011 से 2020 तक मजमूई तौर पर 145 अरब यूरो का इक्तसादी नुकसान उठाना पड़ा। यूरोपीय शुमारियाती ऑफिस यूरोस्टेट के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों के पैदा करदा दीगर मौसमी हालात से यूरोप बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियाँ नामसाइद मौसमी हालात का सबब बन रही हैं और इस सूरत हाल ने मुल्कों को बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी नुकसान से दो चार किया है। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के दौरान मौसम गर्म और खुश्क, जबकि शिमाली बलूचिस्तान और मुल्क के शिमाली इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहेगा। बाराए खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। लेह -3, स्कर्दू 0 और कालाब में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, कुछ दीगर अहम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको आगाह करें। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात अभी तक ख़त्म नहीं हुई। सैकड़ों मुतासरीन खुले आसमान तले भूखे प्यासे घरों से पानी सूखने के इंतजार में पहाड़ पर पनाह लिए हुए हैं। तफसील बता रहे हैं झरक के करीब गांव हुसैन बख्श जांग से मिर्ज़ा हसन बेग। सैकड़ों सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। वो अपने घरों को वापस तो चले गए हैं, लेकिन उनको घर नसीब नहीं हुए हैं। हुसैन बख्श जांग, जो कि झरक के करीब एक बहुत बड़ा गांव है, उसके मुतासरीन जब कैंपों से अपने घर की तरफ लौटे तो घरों के अंदर पानी मौजूद था। ज़िला इंतज़ामिया ने ये कहा था कि उनके इलाके सूख गए हैं, लेकिन जब वहाँ पानी देखकर वो लोग करीबी जो एक पहाड़ी है उस पर उन्होंने पनाह लिए। इस टाइम वो वहाँ के रहायशी जो है शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। घर तो डूबे हो गए, उसकी वजह ये है तो हमारे पास कोई इधर बंदोबस्त कोई नहीं है। इसके वजह जो अभी हमारा घर तो उस तरफ दरिया के उस तरफ है, वो अभी पानी के अंदर है, उसकी में जगह नहीं है, वो सामान उधर ही पड़ा है, कुछ सामान उसके अंदर भी है, वो निकले के कोई मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है। हमारा घर है अभी तक डूबे हैं, कच्चा खाली नहीं, हमारे उधर घर बार सब गिरे, हम इधर खुले आसमान छत पर बैठा हुए हैं। हमारे हुसैन हुकूमत से अपील करता हूँ हमारे इधर को मकान बना के देगा। रात के टाइम मौसम ठंडा होने की वजह से उनके बच्चों को तरह तरह की बीमारियों के लिए है। इन लोगों का कहना यह है कि ना हमारे बच्चा है, ना ही ज़िला हुकूमत की तरफ से हमें राशन दिया गया है। हम लोग सख्त परेशान हैं, फाके मर रहे हैं और हमारी इसमें बुरी हालत है। उन्होंने हुकूमत सिंध और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर हमें कैम्प मुहैया किया जाए, हमें राशन दिया जाए और हमारे इलाज मुआवजे के लिए टीमें भेजी हैं, ताकि हम जो है अपने आप को इस सर्द मौसम से बचा सकें और जो गंदा पानी है उससे बीमारियाँ फैली हैं उससे बचा सकें। शुक्रिया हसन आपका। मज़ीद आपको आगाह करेंगे नवाब शाह में दिवाली की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बच्चों ने खुशी के गीत गाए और केक काटा। त्यौहार की खुशी में हिंदू बरादरी अपने घरों को सजाती है और एक दूसरे को मुबारकबाद देती है। घरों में देसी घी की मिठाई भी तैयार की जाती है। मुल्क भर में हिंदू बरादरी का मजहबी त्यौहार दिवाली मनाया जा रहा है। त्यौहार पर घरों, मंदिरों और इबादतगाहों में मुल्क की खुशहाली और सलामती की दुआएं की गईं। मिट्टी के मुख्तलिफ बाज़ारों में लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ़ है।
मुल्क भर की तरह कल्लात में भी हिंदू बरादरी दिवाली का त्यौहार जोशो जज्बे से मना रही है। इस हवाले से हिंदू पंचायत के रहनुमाओं ने काली मंदिर में दिवाली की तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर हिंदू बरादरी का कहना था कि पाकिस्तान में हमें अपने त्यौहार मनाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। दिवाली हम सब के लिए अमन का पैगाम है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी हिंदू बरादरी से इज़हार यकजहती किया, उन्हें अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। हमें पूरी मजहबी आज़ादी हासिल है। आज हम अपनी दिवाली खुश खरम से खुशी के साथ मना रहे हैं। अपने मंदिरों में पाकिस्तान के लिए नेक दुआएं करें कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे और खुशहाल रहे। आज का त्यौहार खुशियों का त्यौहार का मतलब ये है कि किसी की गरीब को बांट कर उसकी खुशियाँ को अपनी खुशियाँ को समझें, दुख दर्द में काम आए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू बरादरी अपना खुशियों भरा त्यौहार दिवाली जोशो खरोश और मुकम्मल आज़ादी के साथ मना रही है। इस हवाले से तकरीबात का आगाज सूरज ढलते ही मंदिरों में पूजा से किया जाता है। तफसील बताएंगे अमीन डिप्लाई। मुल्क भर की तरह आज सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू बरादरी इंतहाई अकीदत, जोश और खरोश, मजहबी आज़ादी के साथ दीपावली मना रही है। ये दीपावली रोशनियों का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। श्री राम वापस अपने रियासत अयोध्या में पहुंचे थे तो वहां के रहवासियों ने तमाम शहर में दिए जलाकर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया था। दीपावली श्री रामचंद्र 14 साल माँ बाप के कहने के मुताबिक वनवास काट कर वापस आए थे, 14 साल, उसमें खुशी मनाई जाती है। देखिए, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान और उमरकोट में भी ये दिवाली का त्यौहार बड़े धाम-धूम से मनाया जा रहा है। में बसने वाले जो हिंदू है वो बड़े ही आज़ादाना तरीके से दिवाली मना रहे हैं। मैं उसका जिंदा मिसाल और ये जो त्यौहार है इसकी जिंदा मिसाल है। असीं सदाई मल्हाईंदा रहूं, अल्लाह करे त खुशियूं पाकिस्तान में सदाई हुजनि, पाकिस्तान जिंदाबाद आबाद हुजे, जेके ये असांजी खुशियूं कायम रहनि। सनातन धर्म वाले उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और हर साल की तरह इस साल भी हम महादेव के ऊपर पूजा पाठ की है और खसूसी दुआएं की है अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए। सनातन धर्म की ये सबसे बड़ी ईद दीपावली, जिसका आगाज शाम के टाइम पर बच्चे, बूढ़े, जवान मंदिरों का रुख करके करते हैं। मंदिर में इबादत करने के बाद अपने खुशहाली के लिए, अपने अमन सलामती के लिए दुआएं मांगी जाती है। साथ साथ में मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली, अमन और शांति के लिए भी दुआएं मांगी जाती है। ये तकरीबात 3 रोज के लिए जारी रहती हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल एबटाबाद में पासिंग आउट तकरीब मुनक्किद हुई। पासिंग आउट परेड के दौरान जेल कांस्टेबल्स ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया और हाजरीन से ताक पाई। इस मौके पर खिताब करते हुए तकरीब के मेहमान खुसूसी सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल एबटाबाद हामिद आजम ने अपने खिताब में कहा कि नए भर्ती होने वाले कांस्टेबल्स को बुनियादी नज़्म ज़ब्त, जदीद हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग से आरास्ता किया गया और जेल कवानीन के हवाले से भी तरबियत फराहम की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जेल एबटाबाद में कैदी और स्टाफ को सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं।